होके गुजरे जे कोई दुख आवे। माँ दे सीने होके गुजरे जे कोई दुख आवे। बापू वांगू मन फड़ा के केड़ा तुरन सिखावे। बापू वांगू मन फड़ा के केड़ा तुरन सिखावे। जिन्नी वारी मर्जी डिग पई, जिन्नी वारी मर्जी डिग पई, झुक के सीने लाने रब तेरा तेरे कोल मापे जोंदे ने। रब तेरा तेरे कोल मापे जोंदे ने। इस रिश्ते तो क्या सच्चा और भला की होवेगा। इस रिश्ते तो क्या सच्चा और भला की होवेगा। इस दी पीड़ ना होई ना जाने जेड़ा इसनू होवेगा। इस दी पीड़ ना होई ना जाने जेड़ा इसनू होवेगा। कुछ कदे होना तो जाके, कुछ कदे होना तो जाके, जो दर्द हटाते ने रब तेरा तेरी कोल मापे जोंदे ने। रब तेरा तेरी कोल मापे जोंदे ने। माँ बापू दी सूरत विचों रब नजर मैनू आवे। माँ बापू दी सूरत विचों रब नजर मैनू आवे। कर्जे नादान दे नहीं होना सच्ची सोची जावे। कर्जे नादान दे नहीं होना सच्ची सोची जावे। हर साले एहसान गिनादा, हर साले एहसान गिनादा, पर ना कभी जताते ने रब तेरा तेरे कोल मापे जोंदे ने। रब तेरा तेरे कोल मापे जोंदे ने। रब तेरा तेरे कोल मापे जोंदे ने। तिना चिर मापे जोंदे, तिना चिर मापे जोंदे ने। रब तेरा तेरे कोल जिन्ना चिर मापे जिਉਂਦੇ ਨੇ। साध संगत हुक्म ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਪਾਈਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਰੂਰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੰਨੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਓ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਲਗੀ ਧਰ ਵਰਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਰਗੀ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਥੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ।
ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੰਮ ਪਾਲਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਉਹ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਂਗਾ ਕੈਨੇਡਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਪਿਤਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਵਰਗੀ ਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ, ਹੋਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਵੀ ਰੱਖ ਲਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਪਿਓ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਲਗੀਧਰ ਵਰਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਰਗੀ ਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਨਾਲ ਸ਼ਰਮ
ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਚੌਂਕਾ ਤੇ ਵਿਹੜਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਪੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਖੇੜਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਲਵੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਲਿਖਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਪਿਓ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਲਗੀਧਰ ਵਰਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀ ਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਛਾਏ ਜਾਤੀ ਏਕਤਾ ਅਨੇਕਤਾ ਵਲਾਏ ਜਾਤੀ ਹੋਵਤੀ ਕੁਚੀਲਤਾ ਕੁਤੇਬਨ ਕੁਰਾਨ ਕੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਣੇ ਸੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ, ਜੇਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਛਾਏ ਜਾਤੀ ਏਕਤਾ ਅਨੇਕਤਾ ਵਲਾਏ ਜਾਤੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹੋਵਤੀ ਕੁਚੀਲਤਾ ਕੁਤੇਬਨ ਕੁਰਾਨ ਕੀ, ਪਾਪ ਹੀ ਪਰਪੱਕ ਜਾਤੇ, पाप का ही बोलबाला होना सी। धर्म सत जाते वर्ण गर्क जाते, सहज विधान की देवी देव देवरे संतोख सिंगा दूर होते। देवी देवतियां की पूजा कितनी हो, अज खुल के सारे अपनी जिंदगी जीवे गुरु गोबिंद सिंह महाराज का सदका ही। देवी देव देवरे संतोख सिंगा दूर होते, रीत मिट जाती कथा वेदन पुराण की। श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर मूर्ति ना होती जो पै करुणा निधान की। ना कहूँ अब की ना कहूँ तब की, बात कहूँ मैं जब की। अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह का सुन्नत होती सबकी। इस करके सतगुरु जी कृपा करन, सतगुरु के धीआं पुत्र बन के अपना जीवन बतीत करिए। फिर जीवन की जित है सफल 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 भई यात्रा। यात्रा तां ही सफल होनी जो गुरु वाले बनणगे। भुलां चुकां दी खिमा गुरु महाराज कोलों, संगत कोलों, जथेदार साहब कोलों खिमा दे जाचक हाँ। किरपा करियो सतगुरु जी के चरणों असीस बख्शिश करियो कि कीर्तन करन दी होर जाच आवे। भुलां चुकां दी खिमा धन्नवादी हाँ परिवार दे ज्ञानी कुलवंत सिंह जी होणां दे, भाई साहब भाई बलदेव सिंह जी, भाई सुरजीत सिंह जी, भाई जरनैल सिंह जी, समुचे परिवार के धन्नवादी हाँ जिन्होंने संगतां दे दर्शन करवाए। असीस बख्शिश करो आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु की संगत, आप जी के नाल कीर्तन की सांझ पा रहे सन पंथ के महान कीर्तनीय भाई साहब जीत सिंह जी जोधपुरी अते उन्हां दा जत्था। भाई साहब जी आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु की संगत, सतगुरु ने कितनी बख्शिश की है भाई साहब, समय को बंद के रखने ने की बुलंद अते प्यारी आवाज सतगुरु जी ने बख्शिश की है। भाई साहब जी आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परिवार वालों, जिले भर की संगतां वालों। सतगुरु के चरणों च अरदास करते हैं कि सतगुरु जी अपने इहो जे सेवादारां ते अपना मेहर भरिया बख्शिश भरिया हथ रखन ताकि चढ़ती कला नाल कौम नूं नवाजदे रहन। गुरु की संगत, जिस तरह की आप जी सारे भल जाणू हो, सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब जिहड़े कि दीवान दे विच संगत रूप में हाजिर ने। पहले भी आप जी ने दसिया सी कि जथेदार जी ने इत्थे 12 बजे तो पहले पहुंच जाना सी, क्योंकि 10 बजे उन्होंने फ्लाइट श्रीनगर लैंड हो चुकी सी, लेकिन सिक्योरिटी रीजनस के करके एडमिनिस्ट्रेशन अगे उन्होंने जर्नी को अलाउ नहीं कर रही सी। फिर सरदार बलदेव सिंह जी के इंटरवेंशन के नाल एडमिनिस्ट्रेशन ने इजाजत दी ते सिंह साहब इत्थे पहुंचे ने। मैं समुची वेली भारती संगत की तरफों सिंह साहब नूं जय नूं कहना। उत्थे जयकारियां राही बेनती है, पहला जयकारा स्टेज तो शुरू करांगे, 5 जयकारियां नाल सिंह साहब का तो अति धन्यवाद इत्थे करना है। जय नूं कहना है, आपां जयकारियां दे राही आस करते हैं। जिथे सिंघां वालों जयकारे आएंगे उत्थे एक आध जयकारा साडी मातावां भैणां तो भी आएगा। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल मेरी पीरी दे मालिक तो रचाया हुआ तख्त
ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪਹਿਲਾ ਤਖਤ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸੰਗਤ ਵਸਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਕਮ ਉਸ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤਖਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਰੂਬਰੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ, ਜਿੱਥੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਪ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਜੀਪੀਸੀ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਸ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰਾਮੂਲਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਪੂਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਡੀਜੀਪੀਸੀ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਦਾ, ਹੋਰ ਪੂਰੀ ਵੈਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਐਫਰਟ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪਧਾਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਲੀਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਸੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹ ਨਿਭਾਇਆ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਭਾਗੀ ਹੋ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰ ਆਪਣੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬੰਧਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰਾਗੀਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਰੀਬੰਦੀ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਗਾਮ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸੱਜਣ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲੀਵਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਹੈ PDP ਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ 10-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਚੋਣ ਕੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੁੱਟਵਾਦ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ DGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਕਠਿਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ 6000 ਖਾਸ ਕਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰਾਮੂਲਾ
6000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ हैं ਇੱਥੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਉਸ 6000 ਦਾ ਸਟੈਟਸ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਇਸ ਵਕਤ ਅਜਮਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। मैं थोड़ी जी को गल्लां होर करांगा जो तुहानूं जरूर सुननी चाहिए है। विचकार कुछ सानूं मौका मिले सी, सेंटर के कुछ बुलारे आए थे, तो उत्थे मुजफ्फरबाद के जिहड़े सिख ने, जिहड़े उत्थे दे रिफ्यूजन ने, उन्होंने अपनी एक स्टोरी उन्होंने सामने रखी। ये जिहड़े साडे परिवारी ने JNK के, उन्होंने इन्ने ही समूचे के इन्ने प्यार के नाल अपनी स्टोरी सुनाई कि उन्होंने अखां विच अथरू आ गए। तो दास उन्होंने बार बार टाइम मंग रहा सी, तो जो नहीं मिला तो एंड मंगे कि तुसीं बहुत बार आ चुके, तुसीं दसो। मैं कह रही तुसीं 50 साल पुरानी स्टोरी सुन के तुहाडे इन्ने मोटे मोटे अथरू नहीं लाए, थोड़े अथरू बचा के कहते जी किते भी। मैं कि उन्होंने सिखा ली जिन्होंने बारे तुसीं सोच नहीं रहे, जिन्होंने बारे जो तुसीं सोचोगे नहीं, हो सकता है अगले 10 साल बाद वो भी कश्मीर में नहीं रहने, उन्होंने बारे तुसीं की सोचा। नाल ही उत्थे होर एक बड़े बुलारे बैठे सी, जब वो गल कर रहे सी, वो कह रहे थे कि तुसीं दसो सानूं कि असीं बाहर की संगतां कश्मीर किस तरह लाइए। मैं हाथ जोड़ के उन्होंने विनती की है कि ये साड़ी बदकिस्मती है कि मतलब साढ़े भरा जिहड़े इत्थों निकल गए, अज तुसीं स्कीमां दे तहत उन्होंने वापस ला रहे हो, किते ऐसा ना होवे साढ़े भी चले जान, फिर तुहानूं नवीं स्कीमां बनानी पैण, सरदारां नूं वापस बुला रहे। मेहरबानी करके ये चीज़ां ना सोचो। मैं इस प्लेटफॉर्म तो उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ भी ਜਿਹੜੇ भी अधिकारी है उन्होंने, और मैं खास कर ज्ञानी अपने जथेदार साहब सरदार रघुवीर सिंह जी भी आग्रह करूँगा कि वो भी एक मैसेज लैके जान थे कि साड़ी तकलीफों को समझन, साढ़े बच्चों की तकलीफों को समझन। सानू नौकरियां की बड़ी इतने मुश्किलात है, साढ़े जो बच्चे ने इतने कोई बिजनेस में इन्हें जा नहीं सकते, तो सारे की जी राह नज़र है वो नौकरियां तक रहनी है। तो असी ये सारी गल्लां उन्हां सामने वक्त वक्त रखते रहने हैं, तो तुहानूं ये यकीन दिलाते हैं कि DGPC बारामूला का जो स्टैंड होएगा वो कौम की हित लई होएगा। तो अगे भी मैं बाकी कमेटियां नूं ते जिहड़े साडे बुलारे ने, खासकर पोलिटिकल बुलारे और खासकर कुछ ऐसे बुलारे भी हैं जिहड़े अपने भी एफर्ट्स करते हैं, उन्होंने कहना कि मेहरबानी करके तुसीं जदों जांदे हो सिखां दी हित दी गल करो, साडे बच्चों की फ्यूचर की गल करो। साढ़े बच्चों का फ्यूचर है सर, तो असी लोग इतने बैठे थे, ये साढ़े बच्चों का फ्यूचर नहीं है, असी अपने आप इतों आस्ता आस्ता माइग्रेट हो जावांगे। तो मैं हम ज़्यादा टाइम ना लेंदा होवे, तो कोई भूल चूक होगी मैं क्षमा का जाचक हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये सन सरदार परमजीत सिंह जी प्रधान DGPC बारामूला। प्रधान साहब का भी परिवार वालों बहुत बहुत धन्यवाद। हुण मेरी बेनती है सरदार बलदेव सिंह जी MD ਅਤੇ CEO पीक्स ग्रुप ऑफ कंपनी, जिन्हां दा उपराला सदका समुचा परिवार हर बारे इस तप स्थान से इस अगस्त के महीने के समागम चाहता है। उन्होंने पास बेनती है कि वह भी स्टेज पर आएंगे जिथे वो सिंह साहिब को जैन कहेंगे, उत्थे अपने विचारों की सांझी संगतां दे नाल पाएंगे। फिर दूर की संगत आप सिंह साहिब तो उन्होंने विचार, गुरमत विचार, सियासी विचार, होर भी गल्लां जिहड़ियां ने पले बनने वाली गल्लां वो सरवण करांगे। मैं बेनती करांगा सरदार बलदेव सिंह जी पास कि स्टेज पर आके समय का भी खास ख्याल रखेंगे, अपने विचारों की सांझ पाएंगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु की जोड़ी बैठे साध संगत जी, मैं थोड़े सारा का धन्यवाद करता हाँ कि तुसीं इन्नी दूर चढ़ के इस प्रोग्राम में हिस्सा पाया है तो महाराज दी खुशियां प्राप्त कीतियां हैं। तो मैं सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी, जथेदार श्री अकाल तख्त साहब, श्री अमृतसर साहब, उन्होंने बहुत धन्यवाद करता हाँ कि वो पिछले साल भी इस प्रोग्राम पर आए सन, तो अज भी उन्होंने साड़ी बेनती को प्रवान किया। तो इस प्रोग्राम के भोजन ने हाले कह श्रीनगर से साड़ी कोई 1.5 घंटे की लड़ाई
ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਭਾਈ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨੂਰਪੁਰੀ ਜੀ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ DDC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਿੰਘ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 6 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਰਾਲ ਬੋੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨਗਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਟਪਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਮਟਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 70 ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੁਣ ਕੇ 70 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਕੋਰਸ ਮਿਲੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ BSc MSc ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕੋਰਸ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਉਹ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਾਫੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੱਖ ਫਰੰਟ ਫੋਰਮ ਬਣਾਇਆ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਤੇ ਅਸੀਂ 4 ਵਾਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਰਸਨਲੀ। ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਰਤ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤੇ ਵੰਡ ਚੁੱਕੀਏ। ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੁਰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸੋਰਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਹੋ ਲੱਗੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜੰਮੂ ਵੀ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪੇ ਹੀ ਪਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਜੰਮੂ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਘਰ ਬਾਤ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਘਰ ਬਾਤ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਬਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਆਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ 150 ਤੋਂ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਕਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੀ ਪੈਣ ਕੋਈ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ। ਅਸਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਗਵਰਨਰ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਘਰ ਨੂੰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ
ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਸਥਾਪਿਤ ਦੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਠਾਕਰ ਸੰਤ ਰੋਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਪੋਸਥਾਨ ਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। तो साड़ी रखवाली आप करनगे ते सानू वक्त के नाल बदलना जरूरी है। जो वक्त की मंग है उन्होंने वक्त को विचारना है तो वो वक्त को जो विचारना वो बहुत जरूरी है। तो महाराज कहते हैं वक्त विचारे सो बंदा होए, तो हम वक्त विचारने की जरूरत है। तो बाकी सारे बहुत सियाने बहुत समझदार लोग इतने बैठे हुए हैं। आगे का असीं रोड मैप तैयार करांगे तो गुरु महाराज ने चाहे जोड़े पंथ के काम ने तो इस साल घट्टो घट्ट 3 तो 4 काम जोड़े कदे नहीं हुए पिछले 7 साल तो ਉਹਦਾ ਤੁਰੰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੇ ਸੰਤ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ DGPC ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ और भी महान शख्सियत संगत का इकट्ठ होया है। होर भी कुछ बुलारे ने जिस तरह डॉक्टर हरभगत सिंह जी आए हैं, होर भी उन्होंने समझ देना है। लेकिन मैं हूँ बेनती कराँगा, असी सब तो पहले सिंह साहब के विचार श्रवण करने हैं। मेरी बेनती है सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी के चरणों में जथेदार श्री अकाल तख्त साहब वो जितना समा आप ही योग समझन अपने विचारों में, उन्होंने जी मैं स्टेज को कोई समा अनाउंस नहीं कराँगा, वो जितना समय योग समझन अपने विचार की साई संतान के नाल पान। जथेदार श्री अकाल तख्त साहब। जुग जुग अटल लोक परलोक दे राखे तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु रूप खालसा साध संगत जी, सब तो पहला फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अकाल पुरख की अपार कृपा के नाल सरदार बलदेव सिंह अकीना के सारे परिवार वालों अज की गुरमत समागम संत बाबा रोचा सिंह जी के स्थान के उत्ते किए जा रहे हैं। जो महान बंदगी वाली रूह सन और जिन्होंने कश्मीर के विच बड़ा सिक्खी का प्रचार किया, जगह जगह जाके सिक्खी के बीज को खिला रहे हैं। अज उस बीज तो सिक्खी की फसल जी है कश्मीर के विच असीं देखते पए। गुरु के शब्द नाल जोड़ना किसी सिख को यह सब तो बड़ा पुण्य है, सब तो बड़ा धर्म है। भाई गुरदास जी कहते हैं जैसे सत मंगल कंचन के उसार दीने, ऐसा पुण्य सिख को एक शब्द सिखाएगा। सोने के मंदिर बना देते सत उन्ना पुण्य मिलता है जिन्ना किसी को गुरु शब्द नाल जोड़ देगी। जे गुरु के शब्द नाल जोड़न वाले को इन्ना पुण्य मिलता है, जिहड़ा गुरु नाल तोड़दा है उन्हें पाप भी लगता है, वो गुनाहगार भी होता है, पापी भी होता है। वो गुरुद्वारा साहब जाता है गुरु नूं मत्था टेकण वास्ते, ते कोई उसनूं गुरु के राह गुरु के घर जाणों रोकदा है ते वो मोटे बड़े गुनाह का भी पाता है, गुनाहगार भी।
ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜੋੜਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੰਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਜਾਣ ਹਾਸਿਓ ਦੇਵੈ ਜੋੜ, ਪ੍ਰਾਣ ਕਹੋ ਬਕੋ ਸੁ ਰਸਨਾ, ਦੀਜੈ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣ ਦਾ ਤੋੜ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਭਰਮ ਪਾਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਨੋਰਟੀ ਲੱਗੀਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਚ ਜੇ ਗੁਰੂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਿਨੋਰਟੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨਫੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਾਜਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਰੌਂਦਦਾ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦਾ ਹੋਇਆ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਦਾ, ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੋਹਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖੀ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਵਾਹ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਘਰ ਸੀ, ਨਾ ਘਾਟ ਸੀ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਨਾ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ, ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿਰ ਲਿਆਓਗੇ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੀਵਤ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਔਰ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲਦੇ। ਜੰਗਲਾਂ ਬੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਝੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਘਿਆੜਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਮਰ ਗਏ, ਘਬਰਾਏ, ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹਕੂਮਤ ਵੈਰੀ ਬੜੀ ਬੈਠੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਜੋ ਵੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਟੁੱਟੇ ਗਏ, ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਟੁੱਟੇ ਗਏ। ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਇੱਕ ਨਾ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ
सिख तो गिर है, सिख तो खत्म हो गए, सिख तो हम रहना नहीं, सिख राजनीतिक तौर पर खत्म हो गया, सिख आर्थिक तौर पर खत्म हो गया। इस तरह की गल्लां असीं सुनते हैं। पर एक गल चेते रखनी है कि जिस सिख गुरु नाल जुड़िया कि इन्हूं दुनिया की ताकत खत्म नहीं कर सकता। एक बार वो समा भी आया सी जो केवल ते केवल 2 सिख रह गए, 2 सिख, और हुकूमत ने ऐलान कर दिता सी कि धरती के उत्तों हुण सिख जिहड़े है वो समाप्त कर दिते गए। सिख कौम जिहड़ी है वो मुक गई है, खत्म हो गई है। और वो 2 सिख सी, एक का नाम सी बाबा बोता सिंह जी, एक का नाम सी बाबा गरजा सिंह जी। जो उन्होंने ये गल सुनी की ऐलान हो रहे हैं हुकूमत वालों कि सिख खत्म हो गए हैं, उन्होंने क्या है हुकूमत को दसना चाहिए कि सिख खत्म नहीं होए, सिखों का राह कर दिया। और उन्होंने दोनों ने जाके सड़क के उत्ते नाका ला के मुसाफिर जिहड़े व्यापारी लंघदे सी उन्हां तों टैक्स वसूलना शुरू कर दिता। टैक्स वसूलना शुरू करता जो कोई पुछता सी कि टैक्स काहदा, वो कहते तुहानूं नहीं पता खालसे का राज है। फिर वो लाहौर जाके पिटदे सी और तुसीं कहंदे हो सिख खत्म हो गए, सिख का टैक्स लै रहे हैं, सिख का मामला लै रहे हैं, तुसीं किवें कहंदे हो सिख खत्म हो गए। वो दौर भी सिखा रहे। इस करके घबराउण की या चिंता करने की लोड़ नहीं है, बस असीं गुरु का पल्ला फड़ के रखना। मुश्किल का समा जो है ना एक समुद्र की तरह साढ़े सामने आया है, ये बड़े सौखे के ढंग के नाल असीं पार कर लो, बड़े सौखे के ढंग से। गुरबाणी की एक पंक्ति आती है, बारिशों का मौसम होता ना, जमीन जी गिल्ली हो जाती है। गां का जो बच्चा होता ना जो गिल्ली जमीन के उत्ते चलता है तो उसके पैर के नाल गिल्ली जमीन के उत्ते एक निक्का जिहा टोआ पै जाता है, खड्डा जिन्होंने छोटा है उसके पैर के नाल। फिर जो वो धुप पैंदी है तो वो जमीन सुक जाती है, जो सुक जाती है तो वो छोटा जिहा जिहड़ा खड्डा होता है उसके पैर दिखता है। गां के बच्चे के पैर जिहड़ा छोटा जिहा खड्डा होता है ना वो भी सुक जाता है। फिर जो दोबारा बारिश पैंदी है तो वो पानी खड़ जाता है। वो कितना पानी होंदा वध तो वध अद्धी कटोरी, छोटी कटोरी जिहड़ी होंदी है अद्धी बस इन्ना को पानी जिहड़ा उहदे च होंदा। ते जे कोई मुसाफिर जिहड़ा है वो सफर कर रहा होवे ते उहदे रस्ते दे उत्ते वो छोटा जिहा खड्डा आ जाए ते उहनूं पार करन लग्गिआं कदे कोई मुश्किल आती उहनूं पता ही नहीं लगदा। क्योंकि छोटा बड़ा होंदा ना खड्डा, उन्हें पता ही नहीं लगता कि कदों सहजे सहजे सफर करते हैं वो खड्डा पार करते। बाणी दे विच पातशाह ने एक पंक्ति दे विच वचन किया, कहते जदों मनुख गुरु नाल जुड़िया है तो वो संसार दीयां मुश्किलां नूं भी इस तरह लग जाता है कहते जैसे बाछल खोर, जिवें बच्चे के खोर दे विच खड़ा होया पानी मनुख सहजे टप जाता है, पता भी नहीं लगता। इवें मुश्किल आसान। अफगानिस्तान में सिख देखो आज किस औखी घड़ी के गुजर रहे। पाकिस्तान में जाइए उत्थे भी सिखों को सरकारी नौकरियां जड़ियां बिल्कुल भी नहीं, कोई 1 2 5 7 10 सिख जिहड़े है वो नौकरियां लगे हुए। जिन्होंने पूछिए भी कि तुसीं सरकारी नौकरियां तो तुहाडे बच्चे सरकारी नौकरियां की चाहत रखते हैं, वो कहते सब तो वधिया व्यापार है, व्यापार करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं। और साडा बिजनेस टॉप पे चल रहे हैं। किवें टॉप पे चल रहे हैं? विश्वास पूरा है। काबुल तो एक सिख आए तो उन्होंने एक सिख सी, उन्होंने पूछा कि तुसीं काबुल दे विच की करदे हो? कहंदे जी मेरी दुकान है राशन करियाने। मैं क्या किन्नी कुछ चलती? कहता जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਠਾਨਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇੰਨੀਆਂ ਪਠਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਰੇਟ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲੇ 'ਤੇ ਬੈਠਦਾ, ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਵਪਾਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਸੀ ਡਿਟਰੋਇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਟਰਾਲੇ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ IT ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੌਬਸ ਲੈ ਰਹੇ, ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ, ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਹੋ, ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੱਜ ਮਹੀਨੇ ਦਾ $5000 ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ $10,000 ਦਾ $15,000 ਕਮਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ $2500 ਕਮਾ ਰਹੇ ਔਰ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ $1 ਲੱਖ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ $1 ਲੱਖ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ $50,000 ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ। ਸਾਡੇ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਮਤਲਬ ਵਪਾਰ ਤੇ ਲਿਖੇ ਦੇ ਚਾਕਰੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਕਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। मैंने दसिया 150 नौजवान जोड़ा है इस करके उनकी शादी नहीं हुई क्योंकि वो काम कर नहीं कर। तो मैं जो इतने प्रोमिनेंट सिख ने उन्होंने ये कहूँगा कि इस तरह का संगठन बनाया जाए कि उन 150 बच्चियों जोड़ा है वो व्यापार वाले पास लाया। व्यापार वाले पास व्यापार शुरू करने लिए कुछ पूंजी की जरूरत होती है, कुछ पैसे की जरूरत, और ये कौमी तौर के बड़े जोड़े है यत्न किए जाने चाहिए। मैं 4-5 साल पहला एक बारी अकाल तख्त साहब को शब्द कही सी कि सानू भी इस्लामिक बैंक की तरह एक सिख वर्ल्ड बैंक बनाना चाहिए, जोड़ा साढ़े बच्चों को विदाउट जोड़ा ब्याज जोड़ा है वो लोन दे। इस तरह के उपराले जोड़े है वो किए जाने चाहिए कि असी वर्ल्ड सिख बैंक जोड़ा है अपना बनाए, और साडा बैंक जो बन गया तो दुनिया का बेहतरीन बैंक बनेगा। और वो पिछले साल भी असी यत्न किया सी, एक 100 के करीब जोड़े दुनिया भर के अमीर तरीन सिख है उन्होंने एक मीटिंग जी है दुबई के अरेंज करने का यत्न किया, लेकिन वो किसी गलों सिर नहीं चढ़ सकी। हम फिर दोबारा से उस काम में शुरू कर रहे हैं कि दुनिया भर के 100 के करीब असं जो बड़े अमीर सिख है उन्होंने मीटिंग लईए तो उन्होंने प्रेरित करिए कि इस तरह का कोई
सिस्टम बनाया जाए कि साढ़े बच्चों को वो इस्लामिक बैंक की तरफ के उत्ते लोन मुहैया करवाए कि साढ़े बच्चे जोड़े हैं वो व्यापार के खेतर के जाओ तो फिर असं जोड़ा है वो ग्रोथ करांगे। अमेरिका के यहूदियों को अमेरिका का बिजनेस ही है, सारा बिजनेस जो है वो अमेरिका को यहूदियों बैंक सारी यहूदियों के असं भी इस तरह की प्लैनिंग से कर सकते पर साड़ी एक समस्या जिमें सरदार बलदेव सिंह ने कही है कि साड़ी एक समस्या है, साड़ी एक कमजोरी है, सब तो बड़ी कमजोरी कि असं ज्यों ही कोई इस तरह का कार्य करने का सोचते हैं ना तो साढ़े लोग जोड़े वो मुखालफत करना है। मुखालफत मैं जो स्टेटमेंट दी थी ना सिख बैंक बनाऊंगा कि सानू अपना एक वर्ल्ड सिख बैंक बनाना चाहिए तो उदो कई लोगों ने कहा लो जी कहते बादल ने पैसे इकट्ठे करने का एक ढंग बनाना है वो इतों आके पॉलिटिकल चलाना सिखाने असं तो एक एफर्ट्स करना है, इस तरह का एफर्ट्स करना ये कमजोरी है कि साढ़े असी एक दूसरे की गत्ता नहीं बहुत ज्यादा जो साढ़े कमजोरी निकल जाए तो दुनिया की बेहतरीन कौम है, दुनिया की बेहतरीन मुकाबला नहीं कर सकता। तो सानू मैं एक बार फिर कहूँगा एक यूनिटी रखनी, यूनिटी जो ताकत निकलती है और ताकत नाल असीं सब कुछ कर सकते हैं, ताकत नाल असीं सब कुछ कर सकेंगे और ताकत जिहड़ी निकलनी है वो यूनिटी जो निकलनी है, एकता जो निकलनी है और यूनिटी जिहड़ी है वो तां होएगी जे असीं गुरु दे समर्पित होके गुरु की हजूरी च इकट्ठे होके बैठना सी। एक ये गल मननी पऊगी कि जिहड़ा इलैक्शन सिस्टम है, वोट सिस्टम है, चाहे वो गुरुद्वारा चोणों का है चाहे वो स्टेट की चोणों है, एक घड़ेबंदियां पैदा करता है, घड़ेबंदियां पैदा करता है और ये घड़ेबंदियां जी तो कौमां का भी नुकसान करती है और स्टेट का भी नुकसान करती है। डेमोक्रेसी एक वधिया बदल है जिहड़ा पुराने लोग लैके आए, लेकिन डेमोक्रेसी दी कमियां एक कमी ये भी है कि जी डेमोक्रेसी है या डेमोक्रेसी के अंदर जो वोट सिस्टम है ये बंदे को बंदे नालों सुधा करता है, बंदे को बंदे नालों तोड़ता है, जात के आधार के उत्ते, धर्म के आधार के उत्ते या अमीर गरीब के आधार के उत्ते ये वितकरेबाजी पैदा करता है और साढ़े कोल कोई होर बदल नहीं है, इस करके असीं इहनूं एक्सेप्ट किया है। तो मैं एक आप जी को कहना चाहूँगा कि जिन्हें भी सिख एक तो असीं नशियां तो रह नशे अपने अंदरों बाहर करिए, घर चों बाहर करिए, अंदरों बाहर करिए, क्योंकि देखो शरीर को गुरबाणी ने हरि मंदिर आख्या है, ये शरीर हर मंदिर है। ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਘਾਹ ਫੂਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਤਿੜਕਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡਸਟਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ। ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡਸਟਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਘਟਾ ਜਾਂ ਘਾਹ ਫੂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਸਟਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹਰਮੰਦਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਧਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਥੋੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ कोई नशा है किसी भी किस्म का, चाहे वो शराब है, किसी भी किस्म का, वो उसी बात लगन। दूसरा गुरु नाल जुड़ना है कि गुरु नाल जुड़ने वास्ते जरूरी सब तो गल जी ये है कि असी बाणी नूं पढ़ना शुरू करें, अपने बच्चों को बाणी पढ़ने वाले पासे जोड़िए। हुण बच्चे बाणी पढ़ने वाले पासे किवें तोड़नगे?
ਬੱਚੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਵਕਤ ਟੁੱਟਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਕਰਨ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਏਕਤਾ ਬਖਸ਼ੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਔਰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸક્ષਮ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਮਰੱਥ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਏ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਫਤਿਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। गुरु की संगत, ये संत जथेदार श्री अकाल तख्त साहब, जथेदार जी समूची संगत की तरफ आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत के चरणों में बेनती है, थोड़ा समा होर लगना है, आप जी इसी तरह ही बैठे रहो। उठन की कृपालता न करो जी। जिथे परिवार ने जथेदार साहब को सम्मान करना है, BGPC बारामूला ने जथेदार साहब का सम्मान करना है, उत्थे जथेदार साहब तो परिवार ने बहुत सारी शख्सियतों जो परिवार के सादे पद पे आए हैं उन्होंने सम्मान करना है। उस तो पहले केवल 2-3 मिनट में बोलांगा। जिथे जथेदार जी ने अपने विचारों की सांझ की है गुरु की संगत आप जी के नाल, उत्थे जथेदार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जथेदार जी एक बेनती आप जी के चरणों च करते हैं। कश्मीर के विच रह रहा सिख जो है ना, कश्मीर की टोपोग्राफी बिल्कुल इंटायर इंडिया तो डिफरेंट है। जथेदार जी आप जी की जिथे धार्मिक तौर पर उथे दुनियावी विद्या भी आप जी बहुत ही उच्च दर्जे के आप जी के कोल नॉलेज है। कश्मीर के सिख पिछले 30 साल तो जिन्होंने हालातों में गुजरे आप जी जानते हो। ਅਸੀਂ सरकार की गल नहीं करन जा रहे, ਅਸੀਂ आप जी के चरणों में SGPC की गल करन जा रहे हैं। जथेदार जी 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ उस समय के SGPC के प्रधान सुरगवासी जथेदार अवतार सिंह जी बकर साहब, उन्होंने SGPC का जो इंस्टीट्यूशन सी बाबा बंदा सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज फतेहगढ़ साहब सरदार गुरजीत सिंह जी जो मौजूदा प्रधान ने BGPC बड़गाम के, उस समय भी प्रधान सन, सरदार बलदेव सिंह जी का उपराला सरकार, उन्होंने कहा कि कश्मीर तो 10 कुड़ियां इंजीनियरिंग कॉलेज में हर बारे फ्री पढ़ाई करने आएंगी। वो फिर कुछ दिन चलता रहा, फिर संसार को मकर साहब भी चले गए, उस स्कीम चलेगी। साड़ी बेनती है आप जी SGPC पे जोर पा सकते हो। SGPC दुनिया भर में वसते सिखां की एक इहो जी जथेबंदी है जिहड़ी दुनिया भर के वसते सिखां की बांह फड़ती है, फड़ती रहेगी, रहमा करती है और करनी चाहिए है। हमारा फर्ज बनता है क्योंकि उन्होंने बजट साढ़े पिंड है, जम्मू कश्मीर यूटी के बजट तो ज्यादा बजट असीं चाहते हैं। कश्मीर के सिख की मंग है बेनती आप जी के चरणों में। SGPC के जिहड़े टैक्नीकल कॉलेज ने, जिस तरह उन्होंने माता साहिब को अकैडमिक कॉलेज है, वो साड़ियां बच्चियां जिस तरह बलदेव सिंह जी ने गल की, वो अकैडमिक कोर्सेज नहीं 12वीं तो बाद बच्चियों को एडमिशन देते हैं आप जी BSc BA, लेकिन SGPC को बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने जिन्होंने टैक्नीकल पढ़ाई कराई जाती है। उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज ने, उन्होंने नर्सिंग कॉलेज, उन्होंने डिफरेंट कॉलेज ने। साड़ी बेनती है आप जी इस पर जरूर एक करो, घट घट साड़ी बच्चियां की
एक रिजर्वेशन को चाहे 5 सीटें ही दे दें, लेकिन मोड ऑफ सिलेक्शन आजकल ऑनलाइन है। सारे परिवार रणजीत सिंह बलदेव सिंह दूसरे सिंह नहीं पहुंच सकते। आजकल एक सिस्टम है, जब वो रिजर्वेशन हो जाएगी, मेरे पता है मेरी बच्ची ऑनलाइन अप्लाई करेगी, कोई कट आउट कर दे जे वाकई वो कश्मीर के सिखा की बात बनना चाहते हैं, वो प्रैक्टिकल करके दसन बच्ची अप्लाई करेगी, जी बच्ची उस क्राइटेरिया चाहेगी उन्हें एडमिशन देते जी नहीं आएगी। इस कोई किंतु परंतु ना किसी कोई गल करेगा भाई मनमीत सिंह प्रबंधक है अपनी बच्ची का करवा के। मैं आपको दसा 2013 में साड़ियां बच्चियां जिन्हें पढ़ाई करने जाती थी जथेदार 2013 में साड़ियां 3 बच्चियां सन जो परिवार सन उन्होंने 2013 में एडमिशन होती है बाबा बंदा सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज 4 साल कॉलेज की मैनेजमेंट उन्होंने पढ़ाती है। एक साढ़े जिले की बच्ची पिंड सिंहपुरा तो है, 2 श्रीनगर जिले 2 बच्चियां हैं। श्रीनगर जिले की एक बच्ची जी ਉਹਦਾ पिता साया ਉਹਦੇ सिर को गया, वो बच्ची इंजीनियरिंग करने चली गई थी, ਉਹਦੇ बाद वो फीस देने लाई गई थी। कॉलेज की मैनेजमेंट 2013 तो 2017 तक बच्चे ਨੂੰ पढ़ाती है, वो रोकਦੀ नहीं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कि भाई ਤੁਸੀਂ एग्जाम ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਗੇ। 2017 में जथेदार साहब की बच्चियां में ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं गुरु जी हजूर 2017 में 3 परिवार की बच्चियां पास होकर आ जाएंगी। असं ये गल कह रहे हैं कि तुसी साडे सरमौर अकाल तख्त के जथेदार हो और साडा फर्ज है अपनी गल आपके सामने रखना। इस गल को कोई एडवाइस कोई ना ले। 2017 में जो बच्चियां पास होकर आनी ने 2021 तक मैं बच्चियों को डिग्री नहीं देता कॉलेज। इट मींस कि उन्होंने 4 साल की पढ़ाई है वो 12वीं पास है बच्ची 2013 को 2017 कॉलेज में पढ़ गए 17 तक उन्होंने डिग्री नहीं मिली। उस समय में बीजेपी श्रीनगर बड़गांव पता नहीं भी बंदे स्कूल पता कि नहीं हर बंदे को जाने हैं, लेकिन कॉलेज नहीं मानता। कॉलेज कहता पूरी फीस दे और जथेदार साहब चढ़ाई कर गए उस समय दे मतलब। फिर भी होता है एक परिवार जिस बच्ची का पिता नहीं है वो बच्ची माता वाले संस्थान में आती है, वो सामने मिलती है। मेरे उन्होंने मिलाप होता है श्रीनगर जो गल करते हैं साढ़े को असं उन्होंने कहा तुम लिखती पेंटी पत्र समझते हो तुम थोड़ी की प्रॉब्लम है। असं लिखती पत्र ले आना तो उस पिछले साल जो बीडी जगीर कौर प्रधान सन असं मैं साइंटिफिक कमेटी ने मैं खुद एसजीपीसी ने टेक अप किया, एसजीपीसी ने हेड्स अप किया कि नहीं असं नहीं कोई जैसे तो फीस करनी चाहिए। फिर कॉलेज मैनेजमेंट ने टेक अप किया, बच्चे का फ्यूचर खराब हो रहा है। फिर कॉलेज मैनेजमेंट ने कहा 50,000 रुपया तुम पर हैंड बच्चे का देना है, तो 1.5 लाख रुपया देना पड़ेगा सही साहब। और 1.5 लाख रुपया मेरे जैसा साधारण व्यक्ति नहीं दे सकता जी। फिर असं अपने एक मित्र को बेनती की जो बलदेव सिंह की तरह एक कारोबारी है बहुत बड़ा, वो साढ़े जम्मू कश्मीर का रहने वाला नहीं, वो पंजाब का रहने वाला है। असं बड़ी पुरानी मित्रता से असं बेनती की, उन्हें जाके 1.5 लाख रुपया कॉलेज में भरया ते 3 बच्चियां माता पिता को लैके वो अपनी बच्ची आपे गई 3 बच्चियां अपनी बीबियां लैके आई 2013 में पढ़ाई कर ली 17 में पास आउट हो गए हैं। कि डिग्री मिली उन्होंने 1.5 लाख रुपया ये चीज़ा नहीं होनी चाहिए। जे शर्मनी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कश्मीर के सिखों का दर्द समझती है, फिर प्रैक्टिकली ऑन रिकॉर्ड सानू कुछ तब्दीलियां चाहिए, क्योंकि कश्मीरी से बड़ी मुश्किल चल रहा है, बहुत ही मुश्किल है। सानू अगर सारा है ना जदा जी मेरी पीढ़ी के बाद चरण छो प्राप्त स्थान का सारा है और ठाकुर भाई रोजा सिंह नदानी साहब ने तब स्थान से महापुरुष ने तब किया मेरी बांधी पट चढ़ावे बांधे पट ना छूटे हुए इन्हें पटका के नाल जुड़े हैं, तब स्थान के नाल जुड़े हैं, मेरी पीढ़ी के मार्ग के नाल जुड़े हैं ते सारे कार्य सब कुछ करते हैं। आप जी ने सानू बहुत मिला, आप जी को जो हुक्म होएगा वो एसजीपीसी को मनना पड़ेगा। इस वास्ते मेरी बेनती एक प्रोसीजर बना, चाहे सारी एक कॉलेज में 3 बच्चियों को एडमिशन दो, एक प्रोसीजर को आप एडमिशन करो, उन्होंने बलदेव सिंह किसी सिंह की जरूरत ही ना पे। बलदेव सिंह का उपराला बहुत ठीक है, एक कारोबारी आदमी ने आज तेरे कल बलदेव सिंह अगर एक सिस्टम बन जाए तो आप अप्लाई करें। ये मेरी बेनती है आप जी इस काम पे जरूर देखोगे। साड़ी बच्चियों 12वीं तो बाद इन्होंने कालजां में जान ली बड़ा जरूरी है, क्योंकि इतने वो अपनी अगली पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सकते।
जे सारे अपने कॉलेज ने पंथ के कॉलेज ने पंथ के समाज के चलते हैं उन्होंने कश्मीर के सिखों क्यों एडमिशन इस तो पहले कि मैं डॉक्टर हरबख्श सिंह ਨੂੰ टाइम देवां मैं बेनती करांगा जिथे परिवार के जथेदार जी ਨੂੰ सम्मान देना है उत्थे डीजीपीसी बारामूला ने जथेदार जी ਨੂੰ सम्मान देना है। पहले बलदेव सिंह जी बात बेनती है जथेदार साहब चल रहे बेनती है हो जाए बलदेव सिंह जी आप अपना परिवार ना लेके आप जी ने जिस तरह जथेदार साहब को सम्मान देना है आप जी ने चल रहे बेनती आप जी जथेदार साहब का सम्मान करो। उम्मीद करते हैं जथेदार साहब इस सम्मान जो है वो स्वीकार करेंगे परिवार की तरफ से। डीजीपीसी साढ़े प्रधान साहब बारामूला के डीजीपीसी के चेयरमैन साहब अंदाज सिंह जी फिक्रे हैं और भी मेंबर साहब मौजूदा गुरद्वारा साहब के प्रधान साहब उस स्टेज पे आके जथेदार साहब को डीजीपीसी के तरफ सम्मान करेंगे। बोले सोनिया हुन परिवार ने जिन्होंने सम्मान करना है जथेदार साहब चल रहे बेनती है आप जी ने तकलीफ देवांगे 5 मिनट लगेंगे आप पहले सम्मान करोगे फिर अपना हमने बोलना। सरदार जगदीश सिंह जी आजाद सरदार जगदीश सिंह जी आजाद बोले सोनिया सरदार रंजीत सिंह जी सरदी सरदार रंजीत सिंह जी सरदी डीजीपीसी गुरुग्राम के मेंबर साहब सरदार दरबारी सिंह जी प्रधान सरदार अवतार सिंह जी कैशियर सरदार बाबू सिंह जी भी प्रधान इन्होंने दिनों पास बेनती है कुछ देख के आके अपना सम्मान है जी। डीजीपीसी पुलवामा के एक्स मेंबर साहबान जोड़े थे आए ने डॉक्टर सरदार रवि सिंह जी सरदार मेहता सिंह जी अते डॉक्टर हरबख्श सिंह जी डीजीपीसी के मेंबर ने स्पोक्स पर्सन ने पीडीपी के कश्मीर जो वास्ते सिखों की शान ने बोले सोनिया सरदार जसपाल सिंह जी प्रधान डीजीपीसी श्रीनगर सरदार गुरमीत सिंह जी ट्रेजरर डीजीपीसी श्रीनगर सरदार जसबीर सिंह जी वाइस प्रेसिडेंट डीजीपीसी श्रीनगर वाइस और भी अगर कोई मेंबर साहबान जसपाल सिंह जी ने लाए हैं वो इसके बोले सोनिया बोले सोनिया बोले सोनिया सरदार परमजीत सिंह जी प्रधान डीजीपीसी बारामूला सरदार अंदाज सिंह जी चेयरमैन डीजीपीसी बारामूला सरदार भूपेंद्र सिंह जी प्रधान मौजूदा स्थानीय गुरुद्वारा कमेटी के सरदार भूपेंद्र सिंह जी बोले सोनिया डीजीपीसी बड़गांव के मेंबर साहबान जिन्हें आए चलने बेनती है क्योंकि प्रधान साहब चलने नहीं आए बाकी मेंबर साहबान जिन्हें आए चलने बेनती है वो एक एक करके आ जाए। बोले सोनिया डीजीपीसी बड़गांव के सारे मेंबर साहबान जो मौजूद हैं मैं बेनती करूंगा सरदार गुरमीत सिंह जी गोल्डी जी फाउंडर प्रेसिडेंट गुरु हरकृष्ण जीवन जोत सोसाइटी वो जितने भी हैं ते आए सन बोले सोनिया सरदार गुरमीत सिंह जी गोल्डी जी फाउंडर चेयरमैन गुरु हरकृष्ण जीवन जोत सोसाइटी। मेरी बेनती है सरदार बलबीर सिंह जी डीईपीओ बारामूला उन्होंने अपने परिवार का सम्मान करना है। सरदार राजेंद्र सिंह जी दिदारपुरा सरदार करमजीत सिंह जी
सरदार JP सिंह जी श्रीनगर, सरदार करमजीत सिंह जी अनंतनाग वाले, सरदार JP सिंह जी श्रीनगर, भाई साहब भाई गुरनाम सिंह जी करमुला वाले। बोले सोनिया साबका सदर सरदार तेजपाल सिंह जी, साबका सदर DGPC बारामूला सरदार तेजपाल सिंह जी, बोले सोनिया सरदार DD सिंह जी, साबका प्रधान गुरुद्वारा खाड़ा साहिब श्री सिंहपुरा सरदार DD सिंह जी, बोले सोनिया सरदार दिलबाग सिंह जी, सरदार दिलबाग सिंह जी MD गुरडेव्स, बोले सोनिया सरदार ओंकार सिंह जी चेयरमैन DGPC बारामूला। साढ़े सरकार जो ज्ञानी कुलवंत सिंह जी, मेरी बेनती है ज्ञानी जी पास क्या भी आके सम्मान हो जथेदार साहब तो ज्ञानी कुलवंत सिंह जी, बोले सोनिया सरदार पवन सिंह ਅਤੇ सरदार बलविंदर सिंह ਜਿਹੜੇ सोशल एक्टिविस्ट ने ਜਿਹੜੇ कि जिला पुलवामा ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਰਾਤ ਤੋਂ, सरदार पवन सिंह ਅਤੇ सरदार बलविंदर, सरदार मनमीत सिंह जी प्रधान USF, सरदार मनमीत सिंह जी प्रधान USF, बोले सोनिया सरदार बलदेव सिंह जी सोनी कानेसपुरा वाले जो कि एक वर्दी मित्र ने सरदार बलदेव सिंह जी, सरदार बलदेव सिंह जी सोनी, बोले सोनिया जथेदार जी आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप जी ने समय दिता है। हम मैं बेनती करांगा डॉक्टर सरदार हैबक सिंह जी पास ਜਿਹੜੇ कि DDC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਤੇ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਨੇ PDP ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹ 2-3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮੇਂ ਲਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ हैबक सिंह गुरु दरबार में बैठी साध संगत ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। है तो सैकटरी साहब का हुक्म होया, लेकिन है गुस्ताखी, क्योंकि जब साढ़े महान हस्ती जिहड़े पूरे सिख कौम के पूरे वर्ल्ड के जरदार साहब बोलन, उसको बोलना बाहर बोलना तो बहुत गुस्ताखी है। लेकिन संतां के दर्शन करने से हुक्म होए मैं मना नहीं कर सके, क्योंकि जिहड़ा साढ़े को एक नॉलेज का समंदर है, ਜਿਹੜੇ पूरे वर्ल्ड में सब तो यंगेस्ट जथेदार साहब, ਜਿਹੜੇ पहले जथेदार साहब जिन्होंने PhD की डिग्री हासिल की है, वो भी ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸਰਚ की है। उन्होंने बात बोलना मेरी जुबान इजाजत नहीं दे रही, लेकिन एक गल जरूर कहा, एक शेर के भी सारा कुछ कह दूंगा। साढ़ा हैदर गुरगन साहब है, जरदार साहब ने जो किया, जेडे सारे इतने स्पीच करके गए, सारे का नाम ही लागा, कहते तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा, मुझे राह जरूर से मिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। गुरु ग्रंथ साहब की रहबरी है, जे इसको भूल जाओगे तो सारे रहकर भी आ जाएंगे तो लूट के भी रह जाएंगे। बहुत कर भला हुआ तुम्हारा जाते ना, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हैबक सिंह जी, आप जी का परिवार वालों हुक्म है 2-3 बुलाए होने उन्होंने पास बेनती है 2 मिनट का समय लेंगे ताकि ऐसी समाप्ति करिए। मैं बेनती कर रहा हूँ सरदार DD सिंह जी पास जो भी 1-2 मिनट का समय ला के
अपने विचार के साथ पाएंगे। समय का खास ख्याल रखेंगे। दरबार बैठी साहब जी आपकी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के दरबार के अंदर अपने अनमोल जथेदार सिंह साहब सरदार साहब हरप्रीत सिंह साहब जी जिन्होंने श्री अकाल तख्त साहिब का हुक्मनामा जोड़ा हुक्म सारे संसार के अंदर सिखा की झोली भी पाया है। आनंद माण हो आपने साडी बेटी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिंह साहब दास सिंह दो गल्लां आप जी दे रिक्वेस्ट बेनती करांगा। कश्मीर दे विच जम्मू कश्मीर दे विच अगर सानू किसी की थोड़ है तो निकल पिछले 50 वर्षों 70 वर्षों तो यही हो गया। पर बड़ा लीडर भी आया करता है और पता हो नहीं है। आज असल लोड़ पई कि असि अपने कमाल में तो लीडर को चुनिए ताकि वो आगे चल सके कि असि कटवाई को साफ भी देना है। वो दरख्त असर अपने कमाल में पैदा करता है। हम लगता है कि वो दरख्त सानू शायद देगा फल भी देगा। उसको असर ने आप जी की चोरी भी पा लिया है जिसका नाम सरदार बलदेव सिंह है। इस वास्ते में आप जी को बेनती कर रहा हाँ मास्टर तारा सिंह को लैके इस वक्त तक जितने भी लीडर सारे को आए ये मास्टर तारा सिंह ममता लीडर का होगा एडा मैं किया होगा सब फतेह सिंह एडा लीडर का होगा तो साडी कौम ने इस वक्त अपने आप न क्यों ममता लीडर ने सारी कौम को बर्बाद करके दे दिया। जिसको तो नेहरू जी चाहे चले आगे वो खुश हो गए सारी कौम का कहना होगा कि साथ देखोगा ऐसे लीडर ने संतुष्ट नहीं। ये उस वक्त में सारे लीडर कम हो गए जिन्होंने अपने ममता लीडर ने बोलो सारी विरासत खो डाली। इस वास्ते जम्मू कश्मीर लोग असि आप जी देखो सारी पार्टियां थे ये कोई छोटे काम नहीं है। असि अपना लीडर जिहड़ा समझ कीता है चाहे उसकी खामी है तो पूरी करा जे उस परमात्मा ने कृपा की है तो भाव बहुत कृपा है। ये सारा लीडर सानू जरूर जरूर पई जम्मू कश्मीर दे विच सारे लीडर तुहाडे कोल आएगा सारा लीडर तुहाडा काम फंड करेगा उसी सारे लीडर को हुक्म दोगे जो सारे वास्ते ठीक हो जाएगा। इतने लोग रहते हैं आज करने से वो कीजिए उनकी बड़ा मैं जितने भी स्टेज करना या मैं भाषण करना या चाहता करना एक ऐसा कुछ छाटे एक मैं जरूर लगाई फिर आप भी सुपर्द करते हैं कि सारा कश्मीर जैसा सवाल है कश्मीर से सारे लीडर को पालो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी और जिला दरबार सरदार डी सिंह जोहर रहती है सरदार जरनैल सिंह जी साबका सदर जीपीसी फराज साहब पास जो भी इको बेटा संविधान के सरदार जरनैल सिंह जी गुरु दरबार में बैठे हुए साध संगत जी आप सभी की साथ मेरी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आपने बुलाया पासों बहुत कुछ सर्व किया है पर अंत मेरे को गल कहनी है कि सरदार बलदेव सिंह जी एक लाल साल ने जम्मू कश्मीर के विच जिन्ना भी योगदान असीं सरदार बलदेव सिंह संतां दे वो बड़ा घट है क्योंकि संतां जाणदे ने जे बलदेव सिंह ने अज बारे दसना सी कि इन्होंने कश्मीर संगत ने की किया है गुरधामां ने की किया है सोशल तरक्की किया है इकनॉमिक तरक्की किया है एक बड़ी मिसाल है। मैं बिल्कुल साफ अफसर नहीं कहूँगा कि जितने भी बलदेव सिंह ने सपोर्ट करिए वो घट है। बलदेव सिंह जी एक अपनी मिसाल ने परिवार मिसाल है। मैं इस परिवार को लाख लाख बधाई देता है जिन्होंने एक काम किया है संस्था ने पैसे कराए ने आप फतेह दिन आसान करिए जी
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ और बेनती है सरदार तेजपाल सिंह जी पास जो भी गवर्नमेंट का संविधान में सरदार तेजपाल सिंह जी साहब का सरदार जी मुंसीबाल गुरु ग्रंथ साहब की पावन हजूरी साहिब भागवत भाई को दर्शन के दरबार दुर्गा की साथ सभी फतेह की सांझ करो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। समय काफी हो गया है, सब तालियां हम सिंह साहब जा चुके हैं, लेकिन एक चीज वो कहनी है कि साहिब मेरा मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान महाराज ये सारे छोटे भी सरदार बलदेव सिंह सिंह के परिवार जनरल गौर सिंह सरदार जरनैल सिंह सरदार सुरजीत सिंह इन सारे मित्र की गौर है जीवन जिले के सारी सात संगत पूरी जम्मू कश्मीर की सात संगत गुरु नानक जोड़ते हैं, हर जगह पे समागम करते हैं फिर संगत गुरु नानक जोड़ते हैं। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਮਰਥਾ ਬਖਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਬੜੇ ਆਦਮੀ ਬਣ ਦੇ ਲੋਕ ਮਗਰੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਬਣ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨੀਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਹਮਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕਲਾ ਜੀਵਨ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪੰਜ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਸੀ हम साथ करनी है कि पिछले जो पिछला कैंडिडेट सी कमेटी का इन्होंने अपराध करके सारे कमेटी में जोड़ा सी और सारी कमेटियां को काम कर रही सन, काम का सका हाली नहीं निकला, लेकिन हमें जो जरूर है कि उस काम का सका जिला प्रदेश ने अपराध किया है। असि अमीर शाह नाल मुलाकात की है, गवर्नर के चार मुलाकात की है, और जितने भी मुल्क के बड़े बड़े हमारे सारे नाल मुलाकात हुई है और हमेशा की बात की बात की है, कोई खान की बात नहीं कोई की हुई जितनी भी और खर्चा सारा सब तो बड़ी बात है जरा खर्चा जो होया है वो इन्होंने अपना किया है, किसी गुरु घाट को 10 पैसे इन्होंने खर्च किए, सब तो बड़ी बात है आपने खर्चे फिर सारा सारा को स्कूल की सेवा दी है वो फिर भी इन्होंने आपका खर्चा किया है। आज तक बड़े बड़े लोग बड़े हम लोग, लेकिन इन्होंने खर्चा आपने धर्म किया है, स्कूल भी इन्होंने की बाई ना करके आपने धर्म खर्चा किया है, आपने दुआएं में पैसे दे जाने वाले हैं, अपना 10 बंद रहे हैं तो 3 दफा वापस मिल गया है, सारा खर्चा जो है इन्होंने पेश किया, इसे गुरु आके पूरा खर्चा नहीं हो गया। एक आपके पास साझ करनी सी ये इन्होंने विशेषता है। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਹੋਏ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਪਰ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਇੱਕ ਵਕਤ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ जो कि आप जी नेता है आप जी जरूर रिमाइंडर दे सकते हो उसे अज आप इस दौर में क्योंकि इलेक्शन का समय आ गया है आप जी के रिमाइंडर जाकर जरूर दे के आओ जिन्हें भी आप जो जाओ करता नहीं योग है कोई परेशानी नहीं करा जाए लेकिन सिख पान का काम हो सब इसकी खुशी है कि सिख पान का काम हो चाहे कोई करे ये करे बी करे सी करे और मेरी आज मौजूदा कमेटी आगे बैठती है कमेटियां जिस तरह उन्होंने के सिंह साहब ने दसिया इतने का काम होया है उस काम को आगे तो काम करो ना कि ये नहीं देखो कि इसकी पीढ़ी सीमेंट लगी है गुरु का बने है सीमेंट टाटा की लगी है कि शरण की लगी है ये खुदे फोन की जरूरत नहीं है किसी तरह का काम होया है उन गलत स्टोरी करने की कोशिश करो और हो आगे लाने की कोशिश करो क्या आप जमाना में 6 लाने की कोशिश करो क्या गुरुद्वारे पढ़े हैं हो 2 गुरुद्वारे पढ़ाने की कोशिश करो 6-7 लाख जमीन खरीदी है कुछ और 10 लाख खरीदने की कोशिश करो और बड़े बड़े काम करो एक कमेटियां की देन होती है बाकी ये देन नहीं है कमेटियां कितने जान के कि चावल की कोई किस पेटी कोई चावल की कोई करवाई है वो इस तरह के छोटे मोटे चीजों चावल गुरु काट खाने हैं सामने संगत की बेटी है संगत की खाती है कोई निकाल बड़ी नहीं होती जिस पे राज है चावल की कोई बड़ी बात ये कोई बड़ी बात नहीं चावल की करवाई संगत आंटी है संगत की खा जाती है गुरु का जिसका कोई बड़े बड़े लगा गुरु ये बोले देखिए हम को कहने पास लगा आंटी बोले ये संगत की बेटी एक आप जी ने बैठे प्रभाव सुनते कोटे ज्ञानी जी के प्रभाव बाकर बुलाई हो जेड़े हादसा इस समाज में आने तक संग्राम जोड़े आगे उन्हें बहुत दसी कि ज्ञानी जी से बोले
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਸਭ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਪਿਓ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਹੋਰ 95% ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਜੀ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੀਰਤੀ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਾਸਟਰ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ के लिए ये सब तो बड़ी विशेषता है। सामान्य है हो गया आप जाके बैठे करने संग हो सामान्य वो बैठे करेंगे जो जी आशीष वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये सन साबका सदर डीजीपी सवाल सतविंदर कौर सिंह जी सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। हम दीवान की समाप्ति है। सारे बुलाए ने अपने अपने विचार रखे हैं, सारे ने अपनी अपनी गल की है। एक बार फिर सरदार बलदेव सिंह जी, सरदार सुरजीत सिंह जी और सरदार जरनैल सिंह जी और समूचे परिवार की तरफों विशेष तौर पर ज्ञानी कुलवंत सिंह जी की तरफों बहुत बहुत धन्यवाद। जो कि दूरों नेड़े चल के परिवार के सदे बदल के पहुंचे सन। इतने हाजरी भरी सी उन्होंने गुरु घर के होने को बताया सारे लंगर की काफ़ी देर तो चल रहे हैं जिन्होंने छके ने अभी तक वो लंगर छक ही जाएंगे। एक बार फिर सारे का धन्यवाद परिवार वालों रागी सिंह का महान कीर्तनी सिंह जो बाहरों आए सन बुलाए और संगत बहुत शख्स जिन्होंने सदे पदर पर बुलाए गए सारे का असी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम मैं बेनती करा भाई साहब पास कि वो आनंद साहब का पाठ गायन कर इतने ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਨੇ। ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੀਡੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਹੈ। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की आइडियोलॉजी छड़ के वो बलदेव सिंह को फॉलो करेंगे? क्या पीडीपी की आइडियोलॉजी छड़ के वो बलदेव सिंह को फॉलो करेंगे? असि गुरु के हजूर च कह कहते हाँ इस वास्ते गुरु की संगत अपन केवल गुरु नाल जुड़ना ही चढ़ती कला मिल सकती है। असि एक दूसरे के पीछे न लगे। बाकी नवे प्रबंधकों की जी चोन हो के आई है सारी एग्जीक्यूटिव बॉडी वही है जिस तरह साबका सदर साहब ने दसिया मैं वो ऐड करना। अगर नवी एग्जीक्यूटिव बॉडी चाहती है देखना तो देख ले वो बिल्कुल देखते वो अच्छी तरह देखते वो जितने चल गया वो देखे उन्होंने किसी जगह कुछ लगता है वो पुराने बंदे कुछ साथ बुला के पूछ रहे हैं कि किसी जगह कुछ है बाकी उसमें कोई ये नहीं है। वो जिस तरह काम उन्होंने चलाना है पुराने जिस तरह किया वो बाजार तो चले। हाँ मैं 14,940 रुपए जो पाकिस्तान प्रबंधन की बेनती के संगत ने देते हैं वो 14,940 ने जिन्होंने ने अपना दसवां दिता सारे का धन्यवाद। इस वास्ते असि नवी डीजीपीसी का भी हिसाब नवी डीजीपीसी के एग्जीक्यूटिव ग्रुप जिस तरह काम जानते हैं उस तरह करन चढ़ी करन सारा पूरा सारे का सहयोग है। मैं एक बार फिर सारे का धन्यवाद करता हूँ। गुरु साहब जी को यही अरदास करता हूँ गुरसिखा की हजूर दे हम पापी भी कर पाए बहुत बढ़िया पौराणिक आपकी गुरु की संगत भाई साहब का आनंद साहब का पाठ ग्रहण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का दास अगले महीने 6 तरीक को अपना जगह लैके आएगा जी अमृतसर बागी रवाना जी श्रीनगर तक ते एक महीना सितंबर असं जथे समेत पहला श्रीनगर के सारे लोग बोलना कीर्तन करांगे ते फिर 12 बोले सारे लोग बोलना हाजिर करांगे ताकि आस बोलना जी हाजिर करांगे जी जथे समेत ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ आओ जी
शब्द ऊपर नाम शब्द सुनाओ। Love